ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے کہ میں خدا کے عظیم سورما کا تعارف کرا سکوں. ان میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جو بالعموم پاکستانی لوگ، پاکستانی مسیحی اور بالخصوص پنجاب کے جو مسیحی ہیں وہ خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران صاحب سے بخوبی واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ نہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا کہ سب آپ لوگوں نے جنہوں نے ان کا کلام سنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خدا کس طرح جلال کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی خدمت جو ہے وہ ایک لمبے عرصے پر محیط ہے. ان کی خدمت کا جو دار و مدار ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. بس میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم دعا کریں گے اور خدا کے خادم کو خدا کے روح کے کنٹرول میں دیں گے کہ آج ہماری رہنمائی کے لیے وہ ہمیں ٹیچ کریں. تقریباً 98 کی بات ہے کہ میں اس وقت پنڈی میں ایک آرگنائزیشن تھی، یونائٹڈ کرسچن آرگنائزیشن، وہاں پہ ایونجیلیکل ڈائریکٹر کے طور پہ خدمت بھی تھا، ان کے ساتھ ایکٹیو تھا، اسٹوڈنٹ بھی تھا. تو ہمیں دو لوگوں کو، میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے، ان کو پاسٹر پرویز کامران صاحب کو انویٹیشن دینے کے لیے بھیجا گیا. تو میں یہاں پہ ان کے لیے نا ایک آیت اس لحاظ سے ڈیڈیکیٹ کروں گا. ایوب کی کتاب اس کے 34 باب کی 37 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی لیتا ہے. تو یہ اسپیشل آیت میں خدا کے خادم کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. خداوند معاف کرے کہ اگر کوئی خدا کے خادم کے بارے میں کچھ کہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے ان سے ایک چیز سیکھی اس وقت 98 آج سے 22 سال پہلے. اس سے کچھ دن پہلے میں نے ایک خدا کے بہت بڑے خادم، بڑا نام ہے، وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ گوجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری کے پروفیسر بھی تھے، تو ان کا نام میں نہیں لے رہا. ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ راولپنڈی میں یو پی چرچ کے اندر پادری سردار گڈ صاحب ہوا کرتے تھے، ایف ایم گڈ صاحب، ان کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے بات کر رہے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا. لیکن جب مجھے پاسٹر پرویز کامران صاحب کے ساتھ کانفرنٹ ہوا تو وہاں پہ میں نے ان سے ایک بات سیکھی. ہم دو لوگ ان کو انویٹیشن جب دینے گئے تو یہ وہاں پر نہیں تھے جس جگہ ہم گئے، لیکن اسی کالونی میں کہیں پر یہ وزٹ میں تھے. تو کسی نے ہمیں بتایا کہ فلاں گھر میں ہے. اب ہم دونوں وہاں پر گئے تو وہ جو دوسرے میرے ساتھ بھائی تھے وہ خادم نہیں ہے، وہ عام مسیحی تھے، لیکن چلو اس آرگنائزیشن میں ہمارے ساتھ ایکٹیو تھے. تو انہوں نے اس گھر کا دروازہ نوک کر کے جو بہن باہر آئی ان سے کہا کہ پرویز کامران صاحب یہاں پر ہیں. تو میں اب سن رہا ہوں تو وہ عورت غصے میں آ گئی، وہ بہن. انہوں نے مجھے اور اس شخص کو دونوں کو کافی باتیں سنائی کہ وہ خدا کے خادم ہیں، آپ کو پاسٹر کہنا چاہیے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں پرویز کامران صاحب؟ اتنی دیر میں پاسٹر پرویز کامران صاحب ان کے بیگ سے بیہائنڈ سے باہر آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ان کا بائبل کا بیگ تھا، اور انہوں نے یہ ساری گفتگو مسکراتے ہوئے سنی اور بڑے خوش اسلوب انداز سے اس کو اس طرح اگنور کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. حالانکہ وہ عورت ان کی سپورٹ میں کھڑی کہہ رہی ہے کہ وہ خدا کے خادم ہیں، ان کو پاسٹر کہیں. آپ کیوں پاسٹر کا لفظ ان کے ساتھ نہیں لگا رہے؟ اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ چلے گئے. اور وہاں پر میں نے یہ بات سیکھی کہ کس طرح خدا کے خادم کا رویہ ہونا چاہیے. اس سے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے خادم جو پروفیسر بھی تھے، ان کا جھگڑا میں سردار ایف ایم گڈ صاحب کے ساتھ، ان کی زبان، ان کا انداز تخاطب، ان کا کلام سن چکا تھا. اور جب میں نے یہاں اس خدا کے خادم کی اس حلیمی کو، ہمبلنس کو اور گریٹنس کو دیکھا تو میں ان کا معتقد ہو گیا. اور میں آج اس حوالے سے یہ بائبل کی آیت ایوب میں سے اس کا
34 बाब और 7वीं आयत इनके डेडिकेट करता हूं कि अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्सुर की को पानी की तरह पी जाता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसे खुदा के खादम है और किस तरह खुदा डेफिनेटली फिर खुदा का रूह इनके अंदर बसता है। तो वो हमेशा अपने लोगों को जलाल के लिए जलाल के साथ इस्तेमाल करता है। आइए अपने सर को झुकाएं, मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा और इसके बाद हम खुदा के खादम से आज का रूहानी कलाम अपनी रूहों को सैर और आसूदा करने के लिए सुनेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं। हमारे नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद, जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में जमीन तक झुककर तुझे सिजदा करते हुए मुबारक कहते हैं पाक खुदा। आसमानी पिता इकरार करते हैं कि अपनी ही जात में हम खाक और राख हैं, लेकिन जो कुछ भी है तेरे फजल से है। और आज तेरे फजल का सहारा लेकर तेरे खादम को, रेवरेंड डॉक्टर परवेज कामरान को सर के चांद से पांव के तलवे तक तेरे मज़बा के सामने पेश करते हैं। खुदावंद अपने मज़बा पर से कोयला उठाकर उसके लबों को दाग कि वो नजिस लब लोगों के दरमियान बसता है, ताकि खुदावंद तेरा कलाम तेरी मर्जी के मुआफिक तेरे रूह कुद्स के ताबे होकर हमारी रूहानी बालीदगी के लिए हम तक पहुंचाए। और जितने लोग इस कलाम को सुने उनकी जिंदगियां तब्दील हो, यीशु मसीह की बादशाही में लोग शामिल हो और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। खुदावंद हम जानते हैं कि हम हवा से बातें करने वाले नहीं, बल्कि तुझे जिंदा खुदा से बातें करते हैं जो सुनता भी है और जवाब भी देता है। अपने खादम का जिम्मा ले ताकि तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने हाथ हिलाकर, क्योंकि जब हम अनम्यूट करेंगे तो वॉइस क्लैश होगी। खुदा के खादम को हम वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर साहब, वेलकम, थैंक यू, प्रेज गॉड। नाउ इट्स योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी, आप बरकत है। इससे पहले कि मैं मैसेज शेयर करूं अपनी फैमिली के साथ, हम थोड़ी सी वर्शिप करेंगे, इजाजत है? यस श्योर सर। यीशु के नाम को जलाल, हालेलुया हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे। क्यों यीशु के लहू को पुकारे? क्योंकि यीशु का लहू बचाता है, हालेलुया, निजात देता है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। उसका लहू कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है, हालेलुया, बेअब है, हालेलुया, और सारी नाराजगी को छोड़ डालता है, हालेलुया। इसलिए हम यीशु के लहू को पुकारेंगे। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। Oh, wonderful Lord, hallelujah. Oh, we worship you, Lord, hallelujah. Hallelujah. यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, पूरे दिलाता है। यीशु के लहू को पाना, यीशु के लहू ने, यीशु के लहू को पाना,
होता है, यीशु का लहू नाम से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू हमको धोता है। यीशु का लहू हमको धोता है। तारीफों खुदा के बल की, तारीफों खुदा के बल की, तारीफों खुदा के बल की, हालेलुया। तारीफों खुदा के बल की और बल की, तारीफों खुदा के बल की, तारीफों खुदा के बल की। वो है दाता बना, वो है दाता बना। आओ उसे सजदा करे, आओ उसे झंडा ले। वो है दाता बना, वो है दाता बना। तेरे गुनाह चाहे हो गिर मसीह, सर की मारे सोनेगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो गिर मसीह, सर की मारे धोनेगा वो। पानी और उसे तेरा चला, चलो से जिंदगी दे देगा वो। पानी और उसे तेरा चला, चलो से जिंदगी दे देगा वो। पूरी बारिश बरसा जाती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। की बरखा बरसा जाती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू की बारिश बरसा जाती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। मेरे यीशु की शिफाती है, मेरे यीशु की शिफाती है। मेरे शाफी की शिफाती है, मेरे शाफी की शिफाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, जैसी भी सिचुएशन है, पर खुदा आपको आपकी जगह पर ही शिफा देने पर कादर मुतलक है। हालेलुया। इसलिए यीशु के लहू को पुकारे, क्योंकि यीशु का लहू ही है जो हमें बचाता है, हमें संभालता है, हमें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। हमें बीमारियों से शिफा देता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है। हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र आसमानी बाप, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त सब हम मिलकर तेरे हजूरी में आए हुए हैं और तुझे जलाल देते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त जितने भी बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन है, आए बाप उन सबों के लिए, उनके खानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदा, और चाहती हूँ कि जब तू बोले, जब तू कलाम करे आज शाम, तो जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। हालेलुया। जिंदगियां ताजा हो जाए, खानदानों के अंदर बहाली आ जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت کلیئر آ رہی ہے, بالکل واضح آ رہی ہے. اوکے, زیادہ دور تو نہیں لگ رہا, قریب ہو تھوڑا. نہیں بالکل, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, بالکل ٹھیک. اوکے اوکے, پریز دی لارڈ. ہاللیلویا, یسوع کے نام کو جلال. میں سب سے پہلے اپنے ہم ایمان, ہم رویا, خدا کے خادم پاسٹر آصف, جو جیزس از دا اونلی آنسر چرچ انٹرنیشنل کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ان کی فیملی کا, ساری مینجمنٹ, آرگنائزیشن, ساری منسٹری کے لیے جنہوں نے کشادہ دلی کے ساتھ یہ چاہا کہ آج یسوع مسیح کی عظیم گواہی کے لیے اور بالخصوص بہت ہی خاص موضوع پر خدا کے کلام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. پاسٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو. May God bless you all. Yes, میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں گے. جی, کلام مقدس میں سے پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی تیسری اور چوتھی دو آیات پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے. آمین. مجھے آواز نہیں آئی آمین کی. آمین 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 آمین. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی آمین نجات پائے. آمین. اس کے ساتھ آگے لکھیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. نجات کا جلالی تجربہ اور پھر نجات کے جلالی تجربہ کے ساتھ سچائی کی پہچان تک پہنچنے کا روحانی شرف, سعادت, دسترس, برکت. لیکن سب سے پہلی اہم ترین اور بہت ضروری جو تعلیمی حقیقت ہے وہ ہے
सब आदमी निजात पाए। और इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में बड़ी बात है, इतनी वाज़ेह, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। आज मैं उस मौजू पर आपके साथ कलाम की रोशनी में शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। खुदा की उम्दगी और पसंदीदगी किस बात में है? कि सब आदमी निजात पाए। और आज की हमारी इबादत का जो मौजू है, आलमगीर निजात। आमीन। बहुत ही अहम तरीन सवालात के साथ एक खास सच्चाई जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या वजह है कि लोग अभी तक गुनाहों में, मौरूसी लानतों में, कबाहतों में और जहालतों में गिरफ्तार हैं, बावजूद के इबादतें हैं, चर्चेस हैं, गीत संगीत है, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी लोग गुनाहों में गिरफ्तार, मौरूसी लानतों में गिरफ्तार, कबाहतों और जहालतों में गिरफ्तार हैं। फिर इससे बढ़कर बुत परस्तियों में, ओहाम परस्ती में, इंसानी नजरियात परस्तियों में, बदमस्तियों में, खरमस्तियों में, और लोग शिकस्ता हाल, खस्ता हाल, बदरू गिरफ्तार इब्लीस से मार खा रहे हैं। और फिर अपनी और अपने, जब ये हालात हैं तो अपनी और अपने लवाकीन अजीजो अकारब की निजात, रिहाई, छुटकारे के लिए वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे जो खुदा ने मुहैया किया है। उस इंतजाम पर ईमान नहीं ला रहे जो खुदा ने किया है, बल्कि जैसे इफ्सियों चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, उसके मुताबिक वो बहुत सी गुमराहियों और बेईमानियों का शिकार, और लिखा है कि गलत तालीमों की उछलती बहती मौजों की लहरों में तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जबकि निजात खुदा के दिल का पैगाम है। निजात, रिहाई, खलासी बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून है। ये मरकजी मजमून अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस, बुजुर्ग किताब, अल किताब, किताबों पर किताब, बाइबल मुकद्दस। और ये हकीकत है, निजात बुनियादी तौर पर कोई किसी भी कौम, मजहब, फिरके, रंग और नस्ल का हो,
लेकिन हर इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत निजात का जलाली तजर्बा, निजात का मौजज़ा, इसकी बुनियादी वजह कि लोग तरह तरह की तालीमों और हम परस्तियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो सल्वेशन चाहते हैं, रिहाई चाहते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह खुदा का कलाम बता रहा है, जिस तरह खुदा का दिल, हमने आयत पढ़ी है कि ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है, वो चाहता है। ये चाहत खुदा की है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, नौजवान दोस्त, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप में से हर एक एक के लिए आपके खुदा की सबसे पहली चाहत, डिजाइन, विश कि सब आदमी निजात पाए। आमीन। खुदा सबकी बात कर रहा है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो लिखा खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। दुनिया किसी कौम का नाम नहीं, दुनिया किसी कबीले का नाम नहीं, दुनिया किसी मजहब का नाम नहीं। हां, दुनिया में कौमें हैं, अदियान हैं, मज़ाहिब हैं, तो गोया खुदा सबसे मोहब्बत रखता और उसकी मोहब्बत की इच्छा, चाह, ग्लोबल साल्वेशन, आलमगीर निजात, आलमों की निजात, पूरी दुनिया की निजात। हालेलुया। आमीन। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक, बाइबल बताती है कि खुदा मुनज्जी खुदा है। वंडरफुल। खुदा वो है जो निजात देने वाला है, निजात में दिलचस्पी रखता है। और मैं ये अगर कहूं तो क्या खूब है, दुनिया में कोई ऐसा मौजज़ा नहीं जो आपको गैर मुख्ततम बादशाही, यदि खत्म ना होने वाली बादशाही, अबदी बादशाही, जलाली बादशाही का फर्जंद बनाए, मां सिवाय एक मौजज़े के। और वो मौजज़ा आप बोलेंगे कौन सा? निजात का मौजज़ा। आज सारी दुनिया मौजज़ात के पीछे है। बुरी बात नहीं है, आपकी जो जरूरत है खुदा आपको मुहैया करता है, लेकिन कोई भी मौजज़ा, हत्ता कि कोई मर के जिंदा भी हो जाए, तो आसमानों पर, बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा कि आसमानों पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन जिस जिंदगी के अंदर निजात का जलाली तजर्बा होता है, तो बाइबल में लिखा है आसमान पर फरिश्तों के सामने खुशियां मनाई जाती हैं। आप हैरान होंगे, कई दफा लोग ये बोलते हैं फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। फरिश्ते उस खुशी में शामिल हैं, पर खुशी मनाने वाला कौन है? लिखा है फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। तो यकीनन वही जो मुनज्जी खुदा, जिसके नजदीक ये उम्दा और पसंदीदा है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में सबसे पहला और अहम तरीन जो मौजज़ा है वो साल्वेशन का ही है, और यही जरूरी है।
सो इसीलिए लोग गुनाहों, मारूसी लानतों और जहालतों में गिरफ्तार हैं। इसकी बुनियादी वजह क्योंकि लोग निजात के मुकाशफा की खुशखबरी की मौजज़ाना कुदरत से या तो बेबहरा है या फिर ईमान नहीं लाए या ईमान नहीं लाते, कबूल नहीं करते। ईमान लाना निजात के काम को जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो उसने निजात का इंतजाम और इंसराम हमारे लिए किया, उसको कबूल करना है, आमीन कहना है। नो क्रॉस क्वेश्चन, विदाउट आर्गुमेंट। हलीमी और फरोतनी यही है कि उसके कलाम को, खुदा के इलाही इंतजाम और इंसराम को कबूल करना और शुक्रगुजारी करना। निजात के मुकाशफा, खलासी के मुकाशफा की खुशखबरी की मौजज़ाना कुदरत को जानना, ईमान लाना इंतहाई जरूरी है। बाकी मुकाशफात पढ़ने, समझने, रिसर्च करने, ये बात की बात है, क्योंकि यहां हमने पढ़ा सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। जिस जिंदगी में निजात ही नहीं है, रिहाई का तजर्बा ही नहीं है, आजादी नहीं है, बहाली नहीं है, अगर मैं कहूं निजात का मुकाशफा ये भी है, खुदा की ख्वाहिश है कि वो इब्तिदा के मुताबिक हर जिंदगी को बहाल करे। और इब्तिदा के मुताबिक क्या बहाली है? जिस जलाल से महरूम हुआ है, जिस अबदी जिंदगी से खारिज हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर रूह, बदन, जान इंसान इस जलाली तजर्बा के अंदर आए, फिर वो सच्चाई की पहचान तक पहुंचेंगे। जब बंधन खुलेंगे, जब जुए टूटेंगे। सो खुदा का ये मंसूबा आलमगीर है। हालेलुया। अब निजात इब्रानी में यशुआत, यूनानी में सोत्रियोन, लातीनी में साल्वे और इसी के साथ मिलता जुलता लेकिन निहायत अहम तरीन लफ्ज खलासी। अंजील उस निजात को पेश कर रही है जिसमें खलासी है। पुराना अहदनामा निजात की बात करता है, लेकिन वो मूसी शरीयत और अबूरी निजाम के तहत साल बसाल कुर्बानियां, लेकिन खलासी नहीं। अंजील इसको और जोरदार तरीके से पेश करती है। खुशखबरी की कुदरत यह है, वो निजात जिसमें खलासी है, और खलासी के लिए इब्रानी में गोएला लफ्ज इस्तेमाल हुआ और यूनानी में लत्रोन, जिसका मतलब है मारूसी लानतों की असीरी से रिहाई होना। बड़ी बात है ये, मारूसी लानतों की असीरी से, मारूसी लानतों की असीरी में लोग फंसे हुए हैं। इबादतें हैं, दुआएं हैं, गीत हैं, सब कुछ है, रोजे हैं, लेकिन मारूसी लानतों में फंसे हुए, गुनाहों की गुलामी में धंसे हुए,
اور غیر طاقتوں کے پنجوں میں جکڑے ہوئے بدروحوں سے چھوٹ نہیں رہے، اور پھر ابدی ہلاکت میں پھنسے ہوئے۔ اور گوئیلا لفظ لترون یہ بتا رہا ہے کہ نجات مانوسی لعنتوں کی اسیری، گناہوں کی غلامی اور غیر طاقتوں کے پنجوں اور ابدی ہلاکت سے چھٹکارا، یہ نجات ہے، یہ آزادی ہے، یہ رہائی ہے، اور یہی حقیقتاً تمام معجزات سے اتم اور بڑھ کر معجزہ ہے۔ ہیلیلویا! اور یہ نجات بڑی بات ہے جب میں اس میں مزید غور کرتا ہوں کہ یہ نجات جو ہے، یہ رہائی جو ہے، ہیلیلویا، قیمت یا معاوضہ کے نہیں ہے۔ اب جیسے میں مثال دینے لگا ہوں، ابھی کچھ ہی دنوں جانوروں کی خرید و فروخت کا بہت بازار گرم تھا۔ کوئی شخص جاتا ہے، کوئی بیل بندھا ہوا ہے یا کوئی اور جانور بندھا ہوا ہے، تو وہ خریدار مالک کو کہتے ہیں کہ اسے کھول دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کھول دیتا ہوں، لیکن اس کی اتنی قیمت ہے، کھلوائے جانے کے لیے اور اس کو لے لینے کے لیے اتنی قیمت ہے، 2 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خلاصی، آپ سمجھ رہے ہیں، خلاصی جو ہے، نجات جو ہے، یہ منڈی میں سودے بازی کا ایک منظر ہے، اور یونانی میں اس کے لیے لفظ اگورا استعمال ہوا ہے، یعنی خرید و فروخت کی جگہ۔ ٹھیک رومیو 7 باب اور اس کی 14ویں آیت کے مطابق گناہ گار انسان کی زندگی ایسا ہی حال پیش کرتی ہے جو گناہ کی منڈی میں بکا ہوا ہے۔ ہر گناہ گار انسان زبور میں لکھا ہے، انسان بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے۔ اور ان دنوں جو پینڈیمک پوری دنیا میں کرونا وائرس، اس نے ثابت کر دیا ہے، بڑے بڑے سائنسدان کیا، ریسرچر کیا، ٹیکنالوجی والے کیا، قوتوں والے، طاقتوں والے، بادشاہیوں والے، سب کے سب ہیلپ لیس، انسان بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، گناہ کی منڈی میں بکا ہوا۔ رومیو 7:14 میں اس حقیقت کی تصدیق کی جاتی ہے، کیونکہ میں گناہ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، بکا ہوا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے، ہائے کے ساتھ مجھے کون چھڑائے، میں کم بخت، میں بدبخت، میں بدقسمت، مجھے کون چھڑائے۔ گڈ نیوز یہ ہے سارے عالموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے، ساری امتوں کے لیے۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 36ویں آیت میں خدا باپ کی ذات کے نقش، خدا کے کلمے نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے یہ اعلان کیا، اگر بیٹا
अगर बेटा तुम्हें छुड़ाएगा, अगर बेटा तुम्हें निजात देगा, अगर बेटा तुम्हें रिहाई देगा, यानी बेटे का मतलब वो खुदा जो मुनज्जी खुदा है, उसमें से जो निकला है, वही खुदा बाप मुनज्जी खुदा के विजन को, बोझ को, दर्द को अंडरस्टैंड कर सकता है जो उसमें से निकला है। सो वो निजात देगा, वो रिहाई देगा, वो खलासी देगा, वो छुड़ाएगा। आमीन। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई कोई शक वाली बात नहीं, तुम वाकई, मेरी बहन, मेरी बेटी, इस बात को बहुत संजीदगी से ले। बगैर निजात के जलाली तजर्बे के आपको आज अपने बेड पर नहीं जाना चाहिए। जो तेरे खुदा बाप ने इंतजाम किया है, बगैर निजात के जलाली तजर्बे के तुझे अपने मुंह में रोटी का नवाला भी नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उस साल्वेशन को ले जो तेरे खुदा ने तेरे लिए अपनी जात के नक्श, अपने कलमे, अपने इकलौते बेटे रहमतुल आलमीन यीशु मसीह के वसीला से मुहैया की है। इसीलिए बड़ी बात यीशु ने कही, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे, निजात पाओगे, रिहाई पाओगे, खलासी पाओगे, जमीनी आसमानी बन जाएंगे। निजात के जलाली तजर्बा के अंदर ये मौजज़ा, कोई मौजज़ा किसी जमीनी को आसमानी नहीं बना सकता मां सिवाय निजात के जलाली तजर्बा के। खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, जितने सुनने वाले हैं, जितनी मेरी बेटियां, मेरे भाई, जिन्होंने शायद इस तरह से संजीदगी के साथ गौर ही नहीं किया कि निजात याफ्ता होना अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। सो खुदावंद यीशु मसीह वो आपका निजात देहिंदा, क्योंकि ईमान चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से, अंडरस्टैंड करें, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। किसी दूसरे के वसीला से, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से, बोले क्या लिखा, हम निजात पा सके। और वो नाम क्या है? यीशु। तो फिर बहुत जरूरी है कि हम यीशु को अंडरस्टैंड करें, हम यीशु को जाने, यीशु को समझें। मुझे अच्छा लग रहा है इस चर्च का नाम लेते हुए, जीसस इज द ओनली आंसर चर्च इंटरनेशनल। हालेलुया, बहुत खूब है। जीसस इज द ओनली आंसर
is Jesus? यीशु कौन है? यीशु क्या है? इसको समझना बहुत जरूरी है। खुदा बाप ने ये नाम क्यों रखवाया? तो उसका नाम यीशु रखना ये क्या है? यीशु को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात आलमगीर ग्लोबल सल्वेशन की हो रही है। अब यीशु का जो ये है, हिब्रू में ये यहोवा है, और यीशु का जो सीन है ये युद्ध, सीन, शच, फिर वाव एंड वाव। सो ये युद्ध ये यहोवा को पेश करता है, और यीशु का सीन जो है हिब्रू में शच, शच का मतलब है निजात, और वाव एंड का मतलब है दावत हिब्रू में। तो कंप्लीट इसके मायने है यहोवा निजात की दावत देता है। बाइबल का खुदा, सारी दुनिया का खालिक और मालिक अगर कोई दावत दे रहा है आफरीन आफरीन, तो वो दुनिया को निजात की दावत दे रहा है, साल्वेशन की दावत दे रहा है, रिहाई की दावत दे रहा है, अखलासी की दावत दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, नौजवान, बुजुर्ग, इसको अहम तरीन जाने, निजात सबके लिए, आलमगीर निजात, रहमतुल आलमीन, आलमीन की रहमत। और रहमत क्या है? गुनहगार का, जलाल से महरूम इंसान का, वो इंसान जो बेहतरीन हालत में भी होकर बेसबात है, कमजोर है, नातवा है, उसके लिए रहमत निजात है, खलासी है, रिहाई है। ये आलमगीर है। इसीलिए क्या खूब किसी ने कहा, ना होता संग दिल वाइज, ना होता संग दिल वाइज तो कब का राज पा लेता। तो सब ने मरवा दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम सारी दुनिया के लिए साल्वेशन का डिवाइन प्लान है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में कोई 4-5 मरीज इकट्ठे चले गए हैं, और इत्तेफाक से चारों को एक ही बीमारी है। मलेरिया कह लें या डेंगू वायरस कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब चारों को, 5 को या 6 हैं, एक ही तरह की बीमारी है। और हैरत की बात यह है कि सारी अलग अलग मज़ाहिब के हैं। उनमें कोई क्रिश्चियन भी है, उनमें कोई हिंदू भी है, उनमें कोई सिख है, उनमें कोई मुस्लिम है, उनमें कोई कुछ भी है, पर बीमारी एक ही है। आई थिंक कि डॉक्टर कभी भी ये नहीं पूछेगा जी आपका मजहब कौन सा है। फिर कोई कहे जी मैं ईसाई हूं, तो फिर डॉक्टर उसके मजहब के मुताबिक कोई दवाई बनाएगा। ना बीमारी का कोई मजहब, ना दुआई का। दुआई का काम है कि ये बीमार है और इसकी शिफा के लिए काम करना है इसने। बिल्कुल एंड इसी तरह अंडरस्टैंड कीजिए आलमगीर निजात के उकदे को, आलमगीर निजात के मुकाशफा को, रेविलेशन को। खैर कोई किसी मजहब कौम नस्ल से हो, लेकिन गुनाहगार होना सब मानते हैं। तो जब
जब सब गुनाहगार हैं तो ऐसा नहीं है कि निजात का तरीका फर्क होगा। जब सारी दुनिया गुनाहगार है तो सारी दुनिया के गुनाहगारों के लिए दुआई भी एक है निजात की, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। जीसस इज द ओनली आंसर। चर्च इंटरनेशनल, हालेलुया, आमीन। जीसस इज द ओनली आंसर। वो सबके लिए है बिला इम्तियाज। आसमान के तले जितनी कौमें, कबीले, फिरके, सब आदमियों के लिए ये नाम बख्शा गया, यशुआ, यहोवा शश। वाओ, यहोवा निजात की दावत दे रहा है। आज मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, दोस्त, यीशु तुझे दावत दे रहा है, यीशु तुझे बुला रहा है। आपकी जिंदगी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई इनविटेशन है तो वो साल्वेशन की है, और ये तेरे खुदा बाप की तरफ से यीशु मसीह की सूरत में वो दे रहा है। आमीन। जो खुदा बाप से निकला है वो तुझे निजात के लिए बुला रहा है। और फिर मैं इसको क्लोज करने की तरफ जा रहा हूं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन निजात की कंफर्मेशन किस तरह से, जब यीशु ने कहा जो ईमान लाए, यानी जो खुदा के उस इंतजाम पर जो हर इंसान की जिंदगी की निजात के लिए खुदा ने मुरत्तब किया है, तैयार किया है, उस पर ईमान लाए, उसे कबूल करे। जो ईमान लाए, मरकज 16:16, जो ईमान लाए, और आगे और बपतिस्मा ले। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, लिखा है यीशु मसीह ने कहा वो निजात पाएगा। अक्सर लोग बपतिस्मा को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बपतिस्मा को समझते नहीं है। बपतिस्मा रिहाई की, सच्चाई की अकाई में एक बना देता है, और रिहाई की सच्चाई रोमियो 6 बाब में पौलुस कहते हैं क्या तुम नहीं जानते? यह जानना जरूरी है। क्या हम जितनों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह के दफन और जी उठने में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? हम यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने के जलाली तजर्बा के अंदर दाखिल हो गए। फिर गलतियों के खत में भी लिखा हुआ है बपतिस्मा के वसीला से हम मसीह को पहनते हैं। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ईमान का अमल है। हमारी जिंदगी में सबसे पहला अमल जो ईमान का है वो बपतिस्मा के ईमान के साथ बपतिस्मा लेना है, क्योंकि याकूब रसूल कह रहा है कि बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। जब कौम बनी इसराइल को मौजज़ाना तौर पर मिस्र की गुलामी से निकाल लाए
तो वो बहरे कुलज़म के पास आकर खड़े हुए हैं। निजात की तस्दीक, निजात की तकमील कैसे होगी? बाइबल में लिखा है कि जब वो बहरे कुलज़म में से गुजरते हैं, खुदा ने उनके लिए राह मुहैया किया। उनके दाएं बाएं पानी की दीवारें, ऊपर बादल, और वो बादल जो है वो खुदा सालूस है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स। और उस पानी की वादी से जब वो बाहर जा रहे हैं तो पौलुस कहता है कि वो मूसा का बपतिस्मा लिया। वो बैप्टिज्म था, और वो बैप्टिज्म खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स, वो बादल जो है खुदा सालूस को पेश कर रहा है। तो जब वो बपतिस्मा लेके निकलते हैं तो ये बपतिस्मा उनकी निजात की तस्दीक करता है, उनकी निजात पर मोहर है और उनकी निजात की तकमील है। यीशु ने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आमीन। सो आए मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, दोस्तों, खुदा के खादम पास्टर आसफ के साथ या उन्होंने जो भी इंतजाम कर रखा है, राबता करके जल्द पहली फुर्सत में अपनी निजात की तकमील के लिए, निजात की तस्दीक के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेकर निजात के लिबास यीशु मसीह को पहने। आमीन। क्योंकि लिखा है ये हमारे मुनज्जी, ये हमारे मुनज्जी, निजात देने वाले, खुदा के नजदीक रिहाई देने वाले, खलासी देने वाले, खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। हालेलुया। वो चाहता है, ये मेरी या किसी और की चाहत की बात नहीं है, वो चाहता है, खुदा की चाहत है। ऐ मेरी बेटी तेरे लिए, ऐ नौजवान खुदा की चाहत तेरे लिए, ऐ मेरे बुजुर्ग तेरे लिए। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आमीन। सो आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आज जितनी मेरी बेटियां, बेटे, बहन, भाई, नौजवान, दोस्त, बुजुर्ग जो खुदावंद के कलाम को कबूल करते और बिलखसूस साल्वेशन फॉर ऑल, ग्लोबल साल्वेशन, इस पर ईमान लाते हैं, अभी और इसी वक्त वो इस मौजज़े को पाकर अभी और इसी वक्त आप जो जमीनी है आसमानी बन जाएंगे, आसमानी शहरी हो जाएंगे। गैर मुख्ततम बादशाही, कभी ना खत्म होने वाली बादशाही के ओ प्रेज़ गॉड शहरी बन जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, ये कलाम जो हुआ और तूने पाक रूह की तहरीक से मुझे दिया, अपने भाई पास्टर आसफ के साथ मिलकर आज उन सारी जिंदगियों के लिए जो अभी तक निजात के इस बहुत बड़े जलाली तजर्बा से बेबहरा थे, उनके लिए ये दुआ मांगते हैं, ये रूहानी सादत, दस्तरस और बरकत मांगते हैं। अपनी जिंदगी की पहली फुर्सत में वो निजात के जलाली तजर्बा को हासिल करें और बपतिस्मा के वसीला से निजात के लिबास, निजात के पहनावे
यीशु मसीह को पहन ले। आमीन। और जितने बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम से मौजजाना शिफा पाए, बहाल हो। यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम में, जो हमारा इफ्जी, दरमियानी, अबदी, बड़ा सरदार काहिन और हमारी शफायत के लिए अब तक जिंदा है, उसी के नाम से ये दुआ मांगता हूं और सुनने वालों के लिए बरकत पर बरकत को ले लेता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all. God bless you. Thank you. मैं दिल की गहराइयों से रेवरेंड डॉक्टर परवेज कामरान साहब की मशकूर हूँ कि आज उन्होंने आलमगीर निजात का पैगाम हम सबके साथ शेयर किया। बेशक पाक कलाम में मरकूम है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। बेशक निजात का पैगाम एक मुकाशफा है।